Hello everyone. In today's video, I am solving one of the assignments of chapter number 1, that is number system of class 9th. So in this assignment, maximum extra questions are taken which will help you in preparing for your examination. So let's start. First of all, I will be doing MCQ type questions, multiple choice questions. So see, first question, which of the following is rational? So here four options are given. One is under root 3, another is pi, then 4 over 0, then 0 over 4. You know that under root 3 is an irrational number. Pi is also an irrational number. 4 upon 0 is also not a rational number. Why? Because in rational numbers, denominator should not be equal to 0. And 0 over 4 is a rational number because the definition of rational number is what? The numbers which can be written in P upon Q form, where P and Q are integers. So this is in P upon Q form. P is also integer, Q is also integer, and denominator is not equal to 0. So the answer of the first question here will be question number 1, and this is D part. So this is a rational number. 0 upon 4 is a rational number. Now I am discussing question number 2. So this is, if x square is equal to minus 64, then the value of x power 1 by 3 plus x power 0 is equal to. So see how it is to be done. X power minus 2 किसके बराबर है? 64 के. So you know that x power minus 1 is written as 1 by x. Similarly, x power minus 2 will be written as 1 upon x square. And 64, it will be written as 8 power 2. Right? So 1 upon x square is equal to 8 power 2 means 64. Now you can cross multiply these. X square into 64 will be equal to 1. You can write 64 as 64 over 1 also. So x square into 64 is equal to 1 into 1 means 1. So x square will be equal to 1 upon 64. So how we will find x? X will be equal to, so when square is removed, other side comes under root sign. 1 upon 64 under root. So it will be 1 upon 8. तो x की क्या वैल्यू आ गई? 1 upon 8. फाइंड आउट क्या करना है? x पावर 1 by 3 plus x power 0. Now x has come out to be 1 over 8. तो ये बन जाएगा 1 upon 8 पावर 1 by 3 एंड x पावर 0 इज 1. किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है? 1. अब 1 upon 3 पावर में डिनोमिनेटर क्या है? 3. तो आप 1 upon 8 को क्या लिखेंगे? 1 upon 2 का क्यूब. एंड दिस होल पावर इज 1 by 3 and this is plus 1. Now 1 by 2 one time and both the powers will be multiplied. 3 into 1 by 3. Then plus 1. 3 3 cancel. So what we have got? 1 by 2 power 1 means 1 by 2 plus 1. So LCM has come out to be 2. So 2 divided by 2 is 1. 1 ones are 1. And this denominator is 1. So 2 divided by 1 is 2. 2 ones are 2. So 1 plus 2 is 3 upon 2. So the value has come out to be 3 upon 2. You can see here option number C. So here this is C option, that is 3 upon 2. Now the next question. 7 plus 48 under root and whole under root's value is equal to. So let's solve this question also. Third,
7 plus 48 under root and then its whole under root. So what we can do, 7 plus 48 को आपने स्प्लिट ऐसे करना है कि दो नंबर्स जो हो उसमें एक नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट हो किसी का। तो आप इसको करेंगे 16 इंटू 3। तो यहां 16 जो है वो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट करें 16 का तो क्या आएगा 4। सो 7 प्लस 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 एंड अंडर रूट 3 इनसाइड एंड दिस इज होल अंडर रूट। 16 का अंडर रूट आपने 4 बाहर निकाल लिया और अंदर क्या रहा अंडर रूट 3। अब आपने 7 को स्प्लिट करना है, इस तरह से करना है कि एक नंबर जो है वो 3 आए। तो 7 को क्या लिख सकते हैं आप 4 प्लस 3 प्लस दिस 4 अंडर रूट 3 विल रिमेन द सेम। अब इस 4 को आपने लिख देना है 2 का स्क्वायर और माइंड में बोलना है ए स्क्वायर, प्लस 3 को लिखेंगे अंडर रूट 3 का स्क्वायर, माइंड में बोलेंगे प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो 2 इंटू 2 इंटू अंडर रूट 3 एंड दिस इज होल अंडर रूट। अब जो ये अंडर रूट के अंदर है यहां आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये बन गया 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर और अंडर रूट साइन जैसे था वैसे का वैसा रहेगा। अब 2 प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर, और जब आप स्क्वायर रूट का साइन रिमूव करते हैं तो वो बन जाता है 1/2। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 2 प्लस रूट 3। तो चेक करते हैं 2 प्लस रूट 3 कौन सा आंसर है। दिस इज सी पार्ट, दैट इज 2 प्लस रूट 3। तो यहां पर आंसर लिखेंगे सी 2 प्लस अंडर रूट 3। नाउ लेट्स प्रोसीड विद क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 4, 125 पावर माइनस 1/3। तो इसकी डिफरेंट ऑप्शंस दी गई हैं। तो 125 पावर माइनस 1/3, तो यहां डिनोमिनेटर 3 है, 125 को क्या लिख सकते हैं 5 क्यूब एंड आउटर पावर इज माइनस 1/3। अब आपने बेस एक बार 5 लिख करके पावर्स को मल्टीप्लाई करना है, 3 को कैंसिल करेंगे, सो इट विल बी 5 पावर माइनस 1 एंड विच कैन बी रिटन एज 1/5। So let's see, is any answer 1/5? Yes, this is A option. So A option has come out to be 1/5. Now is question number 5 of MCQ types. This is 625 power 0.16 multiplied 625 power 0.09. तो आपने लिखा ये क्वेश्चन 625 पावर 0.16 मल्टीप्लाइड 625 पावर 0.09. So 625 rule will be applied x power m multiplied x power n. So powers are added 0.09. So it will become 625 and 0.16 plus 0.09 0.25. So it is 625 and if I remove the point it will become 25/100, right? 25 ones are 25 fours are, so 625 raised to power 1/4। तो डिनोमिनेटर 4 है तो आप 625 को 5 पावर 4 लिख सकते हैं एंड आउटर पावर इज 1/4। सो इट बिकम्स 5 पावर 4 इंटू 1/4, 4 कैंसिल, सो यू आर लेफ्ट विद 5। तो देखते हैं 5 कोई आंसर है यहां पे। यस, ए पार्ट इज 5, सो ऑप्शन ए दैट इज 5। नाउ
There are short answer type questions. This is question number 6. Simplify 3 plus 2 root 2. So here I will solve short answer type questions. Short answer type questions. So question number 6. सिंप्लीफाई किसको करना है? 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 को, और इसका क्या होगा? होल अंडर रूट। तो इस 2 को जो अंडर रूट के अंदर है इसको देखकर आप 3 को स्प्लिट करेंगे 2 प्लस 1 में, प्लस 2 अंडर रूट 2 एंड दिस इज होल अंडर रूट। अब इस 2 को आप अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस 1 को 1 का होल स्क्वायर लिख लेंगे, माइंड में बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस 2ab, सो 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 1, और इस पूरे का क्या कर देंगे? अंडर रूट। तो जो अंडर रूट के अंदर टर्म्स हैं ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या होता है? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी अंडर रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बच गया? अंडर रूट 2 प्लस 1, क्योंकि ये जो पावर 2 है और ये अंडर रूट हटेगा तो 1/2 ये कैंसिल हो गया। सो यू आर लेफ्ट विद अंडर रूट 2 प्लस 1, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7. राइट find the simplest rationalizing factors of 500 cube root. 500 क्यूब रूट का रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे? 500 को फैक्टराइजेशन करते हैं। दिस इज 2 2s are 4, 2 5s are 10, 0, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 5s are 25, and then 5 1s are 5. So it can be written as cube root 2 times is 2 and then 5 into 5 into 5. तो इसका बन गया एक ग्रुप ट्रिपलेट्स में। अब एक 2 अगर और होता तो सारे ग्रुप बन गया था। तो इसका जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है, रैशनलाइजिंग फैक्टर किसका? 500 क्यूब रूट का। रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 500 क्यूब रूट इज, कितने 2 के कारण ग्रुप नहीं बन पाया? एक 2 के कारण, तो वो होगा 2 का क्यूब रूट, और 2 के क्यूब रूट को आप 2 raised to power 1/3 भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर है 10। क्या है 10th क्वेश्चन? 7th के बाद नाउ फर्स्ट इज 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज राइट द रैशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ अंडर रूट 5 माइनस 2। तो आप जब भी रैशनलाइज करते हैं तो इस साइन को चेंज कर देते हैं, तो अंडर रूट 5 माइनस 2 का रैशनलाइजेशन फैक्टर रहेगा अंडर रूट 5 प्लस 2। Then is question number 9. Question 9 is write the reciprocal of 5 plus root 2. तो सिर्फ रेसिप्रोकल पूछा है तो 1/5 प्लस रूट 2 जो है वो इसका रेसिप्रोकल रहेगा, राइट। अब नेक्स्ट आ जाते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? राइट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 7/8। सो 10th क्वेश्चन 1/2 and the other number is 7/8. First of all, denominators are different. We need to make the denominators same. अब
अगर इस 2 को डिनोमिनेटर को आपने 8 बनाना है तो आप क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से ऊपर भी करोगे, तो ये बन जाएगा 4/8, 4/8। और ये ऑलरेडी 7/8 है। अब दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गया, राइट। तो देयरफॉर पूछे सिर्फ 2 ही है, तो आप लिख सकते हैं 2 रैशनल नंबर्स, 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 7/8 आर। जब डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो आप न्यूमिनेटर को देखो, यहाँ 4 है और यहाँ 7 है, तो 4 और 7 के बीच में 5 आता है, तो 5/8 एक नंबर हो जाएगा, 6/8 दूसरा नंबर हो जाएगा। ये एग्जैक्टली 2 नंबर्स मिल गए। अगर हमें 2 से ज्यादा जैसे 10 या 6 पूछे होते तो हम ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करते, नीचे भी इसको भी 10 से और इसको भी 10 से करते हैं, देन वी वुड हैव फाउंड अदर रैशनल नंबर्स। नाउ इज 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, राइट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 7 एंड 8। तो 7 जो है इसको आप क्या लिख सकते हैं, 7/1, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 8/1। नाउ you need to multiply the numerator as well as denominator with 10, so it will become 70/10। क्यों करते हैं मल्टीप्लाई, टू मेक these like fractions। यहां भी 10 से 8 into 10 upon 1 into 10, so this will be 80/10। तो देखो 70/10, 80/10 दोनों क्या है, like fractions। therefore 3 रैशनल नंबर्स, 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन किस किस के बीच में, 7 एंड 8। क्या क्या होंगे, डिनोमिनेटर सेम है, 70 और 80 के बीच में 71/10 भी आता है, 72/10 भी आता है, और 73/10 भी। 3 ही पूछे हैं तो 3 ही लिखो, ज्यादा पूछे होंगे तो यू कैन राइट मोर ऑल्सो। Now is question number 12। 12th question है, find 2 irrational numbers between 0.12 and 0.13। तो ये देखो 0.12 जो नंबर है इसको हम 0.120 भी लिख सकते हैं, बिकॉज डेसिमल के बाद 0 का कोई मायने नहीं होते। 0.13, 0.130 भी लिख सकते हैं, ये सारे रैशनल है। अब 0.12 और 0.13 के बीच में आपने क्या निकालना है, यू आर टू फाइंड आउट 2 इरेशनल नंबर्स। तो आप लिखेंगे 2 इरेशनल नंबर्स, 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0.12 एंड 0.13। तो जैसे 0.120 है, 0.130 है, तो इसके बीच में एक आ जाएगा जैसे 0.121 0, 121 00, 121 000, सो ऑन। एक इरेशनल नंबर बन गया ये। फिर आएगा 0 पॉइंट जैसे 123 0, 123 00, 123 000, सो ऑन। इरेशनल नंबर बेसिकली होते क्या है, द नंबर्स विच हैव डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एज नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ना तो यहां कोई टर्मिनेशन हो रही, एंड देन दिस इज ऑल्सो नॉट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। So 13 question is express each of the following decimals in P upon Q form। तो ये 3 parts हैं, तो करेंगे ये 3 parts। This is question number 13 and part number 1। First number is given 5.2 bar। तो हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट लाइन, let x be a rational number।
let x be a rational number. So x will be equal to 5.2 बार. इसको दे देना इक्वेशन नंबर 1. अब आप डेसिमल के बाद देखो कितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा है. ओनली 1 डिजिट. जितने डिजिट्स के ऊपर बार होगा उसके अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे. अगर एक डिजिट पे बार होगा तो 10 से करेंगे, 2 डिजिट पे बार होगा तो 100 से करेंगे, 3 डिजिट पर बार होगा तो 1000 से करेंगे. तो आप यहां लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाई 10 ऑन बोथ साइड्स. दोनों तरफ इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से. सो इट विल बी 10x and it is equal to 5.2 बार मल्टीप्लाइड बाय 10. राइट? तो ये बनेगा 10x. अब 5.2 बार को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 में कितने जीरोस है? 1. तो डेसिमल 1 डिजिट राइट शिफ्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा 52.2 बार. क्योंकि ये बेसिकली 5.2222 सो ऑन है. ये ऐसे बोल सकते हैं 5.22 बार है. तो डेसिमल एक डिजिट राइट शिफ्ट हुआ तो 52.2 बार. और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कर दो. अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दो. सो 2 minus 1 gives 10x minus x is equal to 52.2 बार माइनस 5.2 बार. 10x में से 1x माइनस करेंगे 9x और 52.2 बार में से 5.2 बार माइनस करें तो 2 बार माइनस 2 बार इज 0, 12 minus 5 is 7 and here is 4. तो ये आ गया 47.0 मीन्स 47. तो x की वैल्यू क्या आ गई? 47/9. राइट? नाउ इज पार्ट नंबर 2. पार्ट नंबर 2 में भी लेट x be a rational number. Let x be a rational number. So if x is a rational number, so here is given 0.235 and bar is only on 35. This is 1. अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स पर बार नहीं है? एक डिजिट पर. तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन नंबर 1 ऑन बोथ साइड्स बाय 10. जितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है उतने से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे. एक डिजिट पे नहीं है तो 10 से. तो ये बन जाएगा 10x. और जब 0.235 और बार ऑन 35 को 10 से करेंगे ऐसे मल्टीप्लाई तो 10x. 10 में कितनी जीरोस हैं? 1. तो डेसिमल 1 डिजिट राइट चला जाएगा तो 2.35 बार आएगा. इसको दे दो नंबर 2. ऐसा करने के बाद कितने डिजिट्स के ऊपर बार है? 2 डिजिट्स के ऊपर. तो आप क्या करेंगे? एक बार फिर से इक्वेशन नंबर 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. 100 से क्यों? क्योंकि 2 डिजिट्स के ऊपर बार है. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 ऑन बोथ साइड्स बाय 100. तो 100 इंटू 10 क्या बना? 1000x. और 2.35 बार को 100 से मल्टीप्लाई किया. राइट? तो ये बनेगा 1000x. और 2 जीरोस है तो डेसिमल 2 डिजिट राइट चला जाएगा. 235.35 बार. दिस इज नंबर 3. अब इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करेंगे. 3 minus 2 gives. So 3 is 1000x minus this 10x is equal to 235.35 bar minus 2.35 bar. So
1000 में से 10 माइनस करेंगे तो 990x, और 235.35 बार में से 2.35 बार माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 0, 5 minus 2 3 and this 233, क्योंकि 0.00 तो कैंसिल हो जाता है. सो x विल बी इक्वल टू 233 अपॉन 990. कोई भी कैंसिलेशन नहीं होगी. अगर कोई कैंसिलेशन होती है तो आपने उसको कर देना है. अब इसका पार्ट नंबर 3. पार्ट नंबर 3 में भी एक ये नंबर दे रखा है रैशनल नंबर, तो हम लिखेंगे लेट x बी अ रैशनल नंबर. लेट x बी अ रैशनल नंबर. तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 0.00352 and bar on this. This is one number. अब यहां बार जो है सिर्फ 352 के ऊपर है, राइट. तो आपको ये देखना है कितने डिजिट्स के ऊपर जो है वो बार नहीं है. ये 2 डिजिट 00 ऐसी हैं जिनके ऊपर बार नहीं था. तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ. मल्टीप्लाइंग 1 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग 1 ऑन बोथ साइड्स बाई 100. तो ये क्या बनेगी, 100x इज इक्वल टू, ये पॉइंट 2 डिजिट राइट चला जाएगा तो ये बन जाएगा 0.352 एंड बार ऑन दिस. दिस इज 2 नंबर. अब बार इज ऑन 3 डिजिट्स, तो 3 डिजिट्स के लिए 1000 से करेंगे. इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बोथ साइड्स बाय 1000. सो 1000 इंटू 100, 1 2 3 4 5 x is equal to 3 digits right to the decimal, 352.352 bar. This is number 3. अब आपने 3 में से 2 को माइनस करना है. 3 minus 2 gives, तो 1 के आगे 1 2 3 4 5 x माइनस 100x इज इक्वल टू 352.352 बार माइनस 0.352 बार. नाउ 1 and 1 2 3 4 5 इसमें से 100 माइनस करें. 0 0 9 9 9 एंड क्रॉस, सो इट इज 99900x. 352 में से ये माइनस करेंगे 350, तो ये बचेगा सिर्फ 352 और यहां से x आएगा 352 अपॉन 99900. So cancellation can be done with the table of 2. 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 6 are 12, 2 4s are 8, 2 9s are 18, 2 9s are 18, 2 5s are 10 and 0. 2 8s are 16, 1 17, 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 9s are 18, 2 7s are 14, 2 5s are 10. Now further no cancellation is possible. So x is equal to 88 upon 24975. So this is the solution of question number 13. अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 14. तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, रैशनलाइज 4 अंडर रूट 3
plus 5 under root 2 upon under root 48 plus under root 18. So let's start doing the solution of question number 14. This is 4 under root 3 plus 5 under root 2 upon 48 under root प्लस 18 अंडर रूट। आपने ध्यान रखना है अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 की फॉर्म में सारे को चेंज करना है। तो 4 अंडर रूट 3 सेम प्लस 5 अंडर रूट 2 सेम अपॉन 48 को आप 16 इंटू 3 लिखोगे प्लस 18 को आप 9 इंटू 2 लिखोगे। So 4 under root 3 plus 5 under root 2 upon 16 का अंडर रूट है 4 तो ये आ जाएगा 4 अंडर रूट 3 प्लस 9 का अंडर रूट है 3 तो ये आ जाएगा 3 रूट 2। अब आप इसको रैशनलाइज करेंगे 4 रूट 3 प्लस 5 रूट 2 अपॉन 4 रूट 3 प्लस 3 रूट 2 इंटू इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा 4 अंडर रूट 3 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 2। सेम बस साइन चेंज किया। अब ये न्यूमिरेटर मल्टीप्लाई करेंगे 4 रूट 3 प्लस 5 root 2 it will multiply 4 root 3 minus 3 root 2 upon a plus b a minus b. So it will be a square minus b square. So 4 root 3 का square minus 3 root 2 का square. Now we will solve it. 4 root 3 पूरे को मल्टीप्लाई करेगा किसको पूरे को इसको 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 2 देन प्लस 5 रूट 2 विल ऑल्सो मल्टीप्लाई दिस 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 4 रूट 3 इंटू 4 रूट 3 4 4 जार 16 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 3 तो 16 3 जार 48 माइनस 3 3 जार 9 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 2 सो 9 2 जार 18। अब 4 अंडर रूट 3 इंटू 4 अंडर रूट 3 तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा 3 4 4 जार 16 तो 16 इंटू 3 48 देन माइनस साइन 4 3 जार 12 और अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 बनेंगे अंडर रूट 6 प्लस 5 इंटू 4 इज 20 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 इज अंडर रूट 6 प्लस एंड माइनस बिकम माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इज 2 5 इंटू 3 इज 15 एंड 15 2s are 30 अपॉन 48 माइनस 18 30। सो सॉल्व इट 48 में से 30 माइनस करेंगे 18 आएगा देन माइनस 12 रूट 6 प्लस 20 रूट 6 इसमें एक नंबर प्लस का और एक माइनस का है तो बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस में आंसर आएगा 20 रूट 6 में से 12 रूट 6 माइनस करेंगे तो दैट विल बी 8 रूट 6 अपॉन 30। अब इस डिनोमिनेटर 30 को दोनों का अलग अलग डिनोमिनेटर बना दो 18 अपॉन 30 प्लस 8 अंडर रूट 6 अपॉन 30 जो भी कैंसिलेशन होनी है 2 9s are 18 2 15s are this then 2 4s are 8 2 1s are 2 1 2 5s are 10 इसको और कैंसिलेशन होगी 3 3s are 9 3 5s are 15 so it has become 3 upon 5 plus 4
under root 6 upon 15. So this is the solution of question number 14. Now we will do question number 15. If x is equal to 1 plus under root 2, then find the value of x minus 1 upon x cubed. So let's start doing question number 15. 15 is x is equal to 1 plus under root 2, and we need to find the value of x minus 1 upon x होल क्यूब। जब भी ऐसा क्वेश्चन कोई भी आए उसमें सबसे पहले x दे रखा है तो आपको 1 अपॉन एक्स फाइंड आउट करना है। तो कैसे? 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 2। अब इसको रैशनलाइज करो। 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 2 इंटू इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा? 1 माइनस रूट 2, और उसी से यहाँ डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। तो क्या बन जाएगा ये? 1 माइनस रूट 2 अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर। नाउ दिस इज 1 माइनस रूट 2 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2। So it will become 1 minus under root 2 upon minus 1। अब आपने इस माइनस 1 को जो डिनोमिनेटर में इसको ख़त्म करना है, तो जो ऊपर जो न्यूमिनेटर में जो भी टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस का अंडर रूट 2 प्लस का अंडर रूट 2 बन जाएगा, और प्लस का 1 जो है वो माइनस का 1 बन जाएगा। सो दिस माइनस 1 इज नाउ रिमूव्ड। सो दिस इज 1 अपॉन एक्स। नाउ you need to find the value of x minus 1 upon x whole cube. So it is equal to square bracket x is what? 1 plus root 2. So you have written x's value, then minus 1 upon x. So this you will write in the bracket whole cube. Do write this bracket, otherwise the solution will go wrong. This is 1 plus root 2 minus, now minus is outside, signs will change, under root 2 plus 1 whole cube. Under root 2 plus and minus will be cancelled out. 1 plus 1 is 2, 2 cube, and the value of 2 cube is 8. So x minus 1 upon x whole cube, the final answer is 8. Now see question number 16. If x is equal to under root 3 plus under root 2 upon under root 3 minus under root 2, y is under root 3 minus under root 2 upon under root 3 plus under root 2, find the value of x plus y whole square. So let's start doing the solution. Question number 16. Here the value of x is under root 3 plus under root 2 upon under root 3 minus under root 2. We will rationalize it. Under root 3 plus under root 2 upon under root 3 minus under root 2 multiplied, the rationalization factor of under root 3 minus under root 2 is under root 3 plus under root 2, and same will be written in the denominator also. अब न्यूमिनेटर में अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, आप इसका क्या करेंगे? होल स्क्वायर करेंगे ऐसे, अपॉन a minus b into a plus b. So this is under root 3 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर. So here a plus b whole square. So this is a square plus b square means under root 2 square plus
2ab, so 2 into under root 3 into under root 2 upon under root 3 square is 3 minus under root 2 square is 2. So here under root 3 square 3 plus under root 2 square is 2 plus 2 under root 3 into 2 6 upon 1. Now this 1 we will remove. 3 plus 2 is 5 plus 2 root 6 and ये अपॉन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज x. अब ऐसे ही y के लिए भी करेंगे. y इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2. So rationalize it also. It is equal to under root 3 minus under root 2 upon under root 3 plus under root 2 into under root 3 इसका rationalization factor under root 3 minus under root 2 upon under root 3 minus under root 2. So here under root 3 minus under root 2 is same. तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन दिस इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर. सो a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट 2 स्क्वायर minus 2ab, so 2 into under root 3 into under root 2 upon under root 3 square is 3, under root 2 square is 2, 3 minus 2. So here under root 3 square 3 plus under root 2 square 2 minus 2 root 6 upon 3 minus 2 is 1. So 3 plus 2 is 5 minus 2 root 6. This is the value of y. Question में पूछा है x plus y whole square. So here x plus y whole square is equal to square bracket. Here we have found the value of x as 5 plus 2 root 6. So I am writing here 5 plus 2 root 6. And now the value of y will also be written plus 5 minus 2 root 6 and then whole square. 2 root 6 of plus and minus will be cancelled out. 5 plus 5 whole square. So 5 plus 5 is what? 10. So it is 10 whole square and 10 whole square is 100. So this is the value of x plus y whole square. Now the next question number 17. If 5 plus 2 root 3 upon 7 plus 4 root 3 is equal to a plus b under root 3, find the values of a and b. Such type of questions are very important from examination point of view. So see it carefully. 17. 5 plus 2 under root 3 upon 7 plus 4 under root 3. It is equal to a plus b under root 3. Now we will solve it. Implies 5 plus 2 root 3 upon 7 plus 4 root 3. We need to rationalize this. So rationalization factor of denominator will be 7 minus 4 root 3 और इसी से आप डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे 7 minus 4 root 3 is equal to a plus b under root 3. अब आप देखो न्यूमिनेटर में दोनों टर्म्स डिफरेंट हैं. तो एक ब्रैकेट में आप 5 plus 2 root 3 लिखेंगे और दूसरी ब्रैकेट में 7 minus 4 root 3 लिखेंगे. And in the denominator it is a plus b into a minus b, so it will be a square 7 square
minus 4 root 3 square is equal to a plus b under root 3. Now this 5 will multiply whole 7 minus 4 root 3. Then this plus 2 root 3 will also multiply 7 minus 4 root 3 upon 7 square is 49 minus 4 रूट 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 4 को 2 बार करेंगे तो 16 आएगा, अंडर रूट 3 को 2 बार करेंगे तो 3 आएगा, तो 16 3 जार क्या हो गया 48 a plus b under root 3. Then let's multiply 5 into 7 is 35 minus 5 4s are 20 root 3 plus 2 under root 3 into 7, 2 7s are 14 under root 3 plus and minus is minus, 2 4s are 8, under root 3 into under root 3 is 3, so 8 3s are 24 upon 1 is equal to a plus b under root 3. Now 35 minus 24 is 11. Minus 20 root 3 plus 14 root 3. We both are like terms, so minus 6 root 3. No need to write 1 in the denominator. It is a plus b under root 3. Now we will finally compare. On comparing, तो जब कंपेयर करेंगे आप देख सकते हैं a की वैल्यू क्या है 11 और b की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए इसे रफ वर्क में b अंडर रूट 3 को माइनस 6 अंडर रूट 3 के इक्वल करें, तो ये अंडर रूट थ्री कैंसिल हो जाएंगे, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 6. So a is 11 and b is minus 6. Now next question 18 number. If 4 power x minus 4 power x minus 1 is equal to 24, then find 2x whole raised to power x. So 18th question. 4 power x minus 4 power x minus 1 is equal to 24. So first we need to find the value of x from here. तो आप क्या करेंगे 4 पावर x माइनस, ये रूल होता है x पावर m प्लस n वाला, तो क्या करते थे x पावर m इंटू एक्स पावर n, लेकिन यहाँ माइनस है, आप इसको स्प्लिट करेंगे 4 पावर x इंटू 4 पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 24. अब ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है 4 पावर x, इसकी जगह बच गया 1 माइनस, ये तो कॉमन है सो बच गया 4 पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 24. फर्दर सॉल्व करेंगी 4 पावर x इंटू 1 माइनस 4 पावर माइनस 1 को 1 अपॉन 4 लिखेंगे इज इक्वल टू 24. 4 पावर x मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के बदले में मल्टीप्लाई, 4 1s are 4 minus 1 3 over 4 is equal to 24. Now implies 4 power x is equal to 24, ये 3 upon 4 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर देगा ऐसे, सो 4 power x is equal to 24 divide becomes multiply 4 over 3, 3 1s are 3, 3 8s are 24 and 8 4s are 32. 32 कोई भी 4 की पावर नहीं होती, क्या 4 को 2 पावर 2 लिख दें और होल पावर x, और 32 को हम लिख देंगे 2 पावर 5. क्यों ऐसा किया? So as to make the bases same. So this is 2 base and power this 2 into x is 2x is equal to 2 raised to power
5। अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, बेसिस आर सेम, सो एक्सपोनेंट्स कैन बी इक्वेटेड, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 5, x बनेगा 5/2। अब आपको 2x होल रेज टू पावर x की वैल्यू निकालनी है। So this is 2 into x is what? 5/2 and whole power is 5/2. 2 cancel. So this is 5 raised to power 5/2. किसकी वैल्यू आ गई ये? 2x whole power x की। So this is the solution of this question. अब करते हैं assertion reasoning के question इसमें। So question is assertion reason type. Following questions consist of the two statements assertion and reason. Answer these questions selecting an appropriate option given below. जैसे ए के होगा ऑप्शन कि assertion and reasoning both are true and R is the correct explanation of A. B part, both assertion and reasoning are true but R is not the correct explanation of A. C part, assertion is true but reasoning is false. And D part, reason is true but assertion is false. तो स्टार्ट करते हैं इसमें। assertion है -25 इज नॉट अ रैशनल नंबर। अब आपको पता है -25, ये देखो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। 19 नंबर क्वेश्चन, जैसे -25 है तो -25 को आप -25/1 लिख सकते हैं। सो दिस इज इन P/Q फॉर्म and where P is integer means -25 is integer, Q is 1, it is integer and Q is not equal to 0। तो ये तो रैशनल नंबर होगा। तो इसने लिखा है -25 इज नॉट अ रैशनल नंबर, तो इसका मतलब assertion जो है वो ट्रू नहीं है, assertion तो आ गई फॉल्स। अब रीजन देखते हैं। -25 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ये तो ट्रू है, इसको लिखा जा सकता है। सो assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो कौन सी स्टेटमेंट होगी? assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, दैट इज डी पार्ट। तो ये 19th का कौन सा पार्ट होगा? डी पार्ट, दैट assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। अब करते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। To judge the preparation of the students of class 9th on the topic number system, mathematics teacher writes two numbers on the blackboard and asks some questions about the two numbers। बोला बच्चों की प्रेपरेशन टॉपिक नंबर सिस्टम में कैसी थी, इस चीज को जज करने के लिए मैथमेटिक्स टीचर ने 2 नंबर ब्लैक बोर्ड पे लिखे और उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है उनके बारे में। तो देर आर 4 क्वेश्चंस ऑफ दिस। तो 20th I am explaining 20th question and this is first part। तो क्या है फर्स्ट पार्ट? द डेसिमल फॉर्म ऑफ 2/11। तो ये देखो यहां करते हैं, दिस इज 2/11। तो मैं यहां डिवाइड करके दिखा रहा हूं 2 एंड दिस इज 11। 11 zeros are 0, this is 2 point and 0। 20, 11 ones are 11, this is 9, 0। 11 eights are 88, this is 2 and again 0। तो ये यहां से रिपीट हो गया। सो अगेन दिस 21 ये रिपीट होगा, दिस इज 0.18 बार। मीन्स द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2/11 इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये रैशनल नंबर हुआ। उसके बाद सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है? राइट P/Q फॉर्म ऑफ 0.38 बार। तो लेट x बी अ रैशनल नंबर, let x be a rational number, so x is equal to 0.38 bar on this is one number। तो देखो 3 के ऊपर कोई बार नहीं है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो डेसिमल 1 डिजिट राइट चला जाएगा, 3.8 बार, दिस इज 2 नंबर।
अब बार जो है वो सिर्फ 8 पर है, तो एक बार फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 10 जा 100, इसको करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, डेसिमल एक डिजिट और राइट चला जाएगा तो 38.8 बार आएगा 3 नंबर। अब 3 में से 2 इक्वेशन को हम माइनस करेंगे, 3 माइनस 2 गिव्स 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 38.8 बार माइनस 3.8 बार, तो ये आ जाएगा 90x। 38 माइनस 3 इज 35, क्योंकि 8 बार तो 0 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू 35 over 90, नेसेसरी कैंसलेशन, 5 7 जार, 5 1 जार 5, 4 5 8 जार, तो what is P upon Q form of 0.38 bar, 7 upon 80. Next, the sum of 2 upon 11 and 0.38 bar. So this is third part. 2 upon 11 plus 0.38 bar. तो 2 अपॉन 11 की जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, ये 2 अपॉन 11 को आप 2 अपॉन 11 लिख दो, और 0.38 बार को आपने सॉल्व किया, इट इज 7 अपॉन 18। अब आपको 11 और 18 का एलसीएम लेना है, 1 इज प्राइम 1 इज कंपोजिट, तो एलसीएम इनका मल्टीप्लीकेशन होगी, 8 1 जार 8, 8 1 जार 8, 1 1, दिस इज 8 9 1, so it is 198। 198 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा, 18 2 जार 36। 198 को 18 से डिवाइड करेंगे 11 आएगा, 11 7 जार 77, तो दिस इज 7 प्लस 6 13, 1 इज कैरी, 7 प्लस 1 8 and 3 11, 113 upon 198। Now is part number 4. Find the product of 2 upon 11 and 0.38 bar. So this is 2 upon 11 multiplied by 0.38 bar. So 2 upon 11 as it is, and 0.38 bar you have this font rational number 7 upon 18. So 2 1s are 2, 2 9s are 18. Further no cancellation is possible, so 7 1s are 7 upon 11 9s are 99. So this was 20th question of case study based. Now 21st question, that is last question. This is in summer vacation a school trip was planned, and for this was for class 9th only. समर वेकेशंस में एक ट्रिप प्लान किया गया क्लास 9th के लिए। द ट्रिप ऑर्गेनाइजर प्लान्ड सम एक्टिविटीज बेस्ड ऑन रियल नंबर्स। तो जो ऑर्गेनाइजर था ट्रिप का, उसने कुछ एक्टिविटीज प्लान की रियल नंबर्स की, एंड प्रिपेयर्ड सम चिट्स हैविंग रियल नंबर्स, और कुछ छोटी छोटी चिट्स प्रिपेयर की रियल नंबर्स की, एंड रैंडम स्टूडेंट्स कैन पिक अप वन स्लिप अमंग देम, और उसमें से कोई भी बच्चा जो है वो रैंडमली एक स्लिप उठाएगा। सो पार्ट नंबर 1 ऑफ 21st question and part number is 1. So what is part number 1? It is written, Shaurya picked up a chit on which under root 27 is mentioned. What type of number is this? So under root 27 is an irrational number. This is irrational number. Means the numbers which cannot be written in P upon Q form, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. Second part, Raman picked up a chit of 1 upon under root 7 minus under root 6. After rationalization, the number will be. So 1 upon under root 7 minus under root 6, ये रमन ने स्लिप पिक की, तो इसका रैशनलाइजेशन करके आफ्टर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर विल बी अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 इंटू इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर है अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन
under root 7 plus under root 6. So in the numerator we will get under root 7 plus under root 6 upon denominator is a minus b into a plus b. So it is under root 7 square minus under root 6 square. तो न्यूमिरेटर में आ जाएगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट 7 स्क्वेयर इज 7 माइनस अंडर रूट 6 स्क्वेयर इज 6. सो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन 1. तो उसने डिनोमिनेटर में पूछा है क्या आएगा, तो डिनोमिनेटर में तो 1 आया, तो हमारा आंसर क्या रहेगा इसका 1. नाउ इज पार्ट नंबर 3. थर्ड पार्ट है नंबर ऑफ राजूज चिट इज अंडर रूट 3 एंड शौर्य's चिट इज अंडर रूट 27. व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स? सो सी हियर अंडर रूट 3 into under root 27. So we will be applying the formula a under root b, a under root into b under root, it is ab under root. So both will be multiplied, under root 3 into under root this 27. 27 3s are 81. So the product is 81 under root. So this was the solution of assignment, special assignment of chapter number 1 number systems. Hope you will understand each and every question of it, and I want your feedback that in future what sort of questions do you want to be posted, like in assignment form or separately one questions of different types. So wait till next time. I will be posting soon the assignment of chapter number 2 polynomials also. Thank you.